Good morning, dear children. Welcome to the class. This is the third chapter of your history book. The name of this chapter is Ruling the Countryside. So in this chapter, we are going to talk about that how the British ruled the countryside. That means the village, right? That means how the farmers of India affected with the policies of East India Company. So the first topic in this chapter is, as all of you know, that after Battle of Buxar in 1764, the East India Company became the Diwan of West Bengal, right? That means Bengal ka, sorry, West Bengal nahi, West Bengal बाद में हुआ. This British East India Company became the Diwan of Bengal, right? On 12th August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan, right? Now, look at here, this event is painted by one painter, right? Here, Robert Clive is here, right? At the same time, यहाँ पर कौन है? Mughal Emperor है, right? Robert Clive is accepting the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha from Mughal ruler in 1765. तो ये देखो ये एक इवेंट एक पेंट किया गया है. But the first question is, what do you mean by Diwan? We already discussed about in class, that means last chapter, that Diwans were those persons who were sole authority to collect the tax, manage the revenue, ठीक है, administer the land, ठीक है. तो दीवान का क्या काम होता था? लैंड को ऑर्गेनाइज करना, टैक्स कलेक्ट करना, राइट? दिस वाज द वर्क ऑफ दीवान, राइट? ओके, नाउ लुक एट हियर. If you look at this image, this is an imaginary image. That means ऐसा रियल में हुआ नहीं था, राइट? ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ऐसा हुआ नहीं था. अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना ग्रांड इवेंट लगता है कि कई सारे लोग आए हुए हैं, है ना? एंड यहाँ पर जो है और मुगल एम्परर बैठे हुए हैं, राइट? और रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी राइट दे रहे हैं. बट ऐसा एक्चुअली में हुआ नहीं था. रियलिटी में सिर्फ एक टेंट के अंदर, ठीक है, इनको दीवानी राइट्स दिया गया था. तो फिर ऐसा पिक्चर क्यों बनाया गया? ऑल ऑफ यू नो दैट ब्रिटिश वांटेड टू शो हिमसेल्फ एज अ सुपीरियर, राइट? वो अपने आप को एक बड़ा दिखाना चाहते थे, दैट. तो रॉबर्ट क्लाइव ने इस तरह का पेंटिंग पेंटर से बनवाया था, राइट? ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन. So all of you know that this company started collecting the taxes from the people in Bengal, right? The company needed two things, ठीक है? कंपनी की दो जरूरत थी. पहला क्या था? The company had to generate enough revenue to meet the growing expenses of the company. All of you know that अंग्रेज क्या कर रहे थे? इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स थे उसको खरीद रहे थे, कॉटन, है ना, स्पाइसेस, ये सारा खरीद के यूरोप में जाके वो बेचते थे. यस और नो? तो द कंपनी नीडेड मनी टू परचेज ऑल दीज गुड्स, राइट? अर्लियर द कंपनी यूज्ड टू bring gold and silver from Britain, but now company is taking money from Bengal, right? That means the company is collecting revenue, and that revenue is spent, that revenue was spent on purchasing the different goods from India, right? So पहला नीड इनका क्या था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हम निकालें लोगों से, राइट? और उसी पैसे से हम यहाँ का सामान खरीद के ब्रिटेन भेजें या यूरोप भेजें, राइट और नॉट? दूसरा क्या था कि जो ब्रिटेन में सामान बन रहा है, राइट, जो ब्रिटेन में गुड्स बन रहे हैं, दैट नीड टू बी सेल, राइट? So they wanted that these products should be sold in our country, that means in India, right? तो दो डिमांड क्या क्या थे? पहला उनका क्या था? टैक्स कलेक्ट करना है, सामान खरीदना है और यूरोप भेजना है. दूसरा क्या था? फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन में बन रहे हैं उसको सेल करना है इंडियन मार्केट में. दिस वाज द टू नीड्स ऑफ कंपनी. नाउ पहले पे आते हैं, राइट? दैट हाउ दिस कंपनी स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू. Basically, this British wanted a large revenue, but
they were unwilling to set up any regular system of assessment and collection. ठीक है, ये जो अंग्रेज थे they were traders, वो अपने आप को ट्रेडर समझते थे at that time also. वो क्या चाह रहे थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, लेकिन वो एक रेगुलर सिस्टम नहीं फॉलो कर पा रहे थे. दैट मीन्स एक होता है ना टैक्स का कि इतना टैक्स कलेक्ट करना है इस लैंड से, इस वाले लैंड से इतना टैक्स कलेक्ट करना है. ठीक है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ असेसमेंट, राइट. दैट वाज नॉट डन बाय द ब्रिटिश. वो सिर्फ सिंपली टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, राइट. कोई सिस्टम नहीं था, जब मन होता था जैसे होता था दे वर कलेक्टिंग टैक्स. यू कैन लुक एट हियर दैट विद इन 5 ईयर, अगर आप अंग्रेजों की बात करो तो 5 साल के अंदर उसने दुगुना गुड्स परचेज करना शुरू कर दिया जितना वो पहले करते थे, राइट. ठीक है, द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया गॉट ऑलमोस्ट डबल्ड. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई? बिकॉज नाउ द कंपनी नीड नॉट ब्रिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. द कंपनी ऑलरेडी हैव मनी फ्रॉम द टैक्सेस ऑफ बंगाल, राइट. दैट्स व्हाई very you can say quickly they doubled their purchasing of goods, right. So अब अगर ऐसा होगा तो what do you think, बंगाल का इकोनॉमी कैसा हो जाएगा? बंगाल का इकोनॉमी क्राइसिस में आ गया, राइट. क्राइसिस में कैसे आ गया? लोगों के पास कुछ काम नहीं था, राइट. द पीपल वर वेरी forced to pay the taxes, right or not. There were many artisanal, right, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन, ये सब कुछ जो बन रहे थे वहां पर, आर्टिस्ट जो थे, फार्मर्स जो थे, उन सभी का प्रोडक्शन में काफी ज्यादा डिक्लाइन आ गया, राइट. जो हमारा राइस था, व्हीट था, व्हाटएवर फूड ग्रेन्स, व्हाटएवर कॉटन, जो भी था, जो भी ग्रो होता था, उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो गया. क्यों कम हो गया? क्वेश्चन इज व्हाई. क्योंकि अंग्रेजों ने उनको फोर्स किया, राइट, टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट अ लोअर प्राइस. ठीक है, अंग्रेज उनको फोर्स करते थे कि कॉटन मुझे इतने पैसे में दे दो. ठीक है, और अंग्रेज के फोर्स करने की वजह से फार्मर्स को देना पड़ता था, राइट और नॉट, बिकॉज दे वर दीवान्स, राइट, ऑफ बंगाल. तो बिकॉज ऑफ दैट देयर वर मेनी विलेज दैट वर डेजर्टेड. कई सारे विलेज ऐसे थे जहां पर कि लोग छोड़ छोड़ के गांव को चले गए, राइट. कई सारे लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया. बाय 1770 a terrible famine killed 10 million people. लगभग 1 करोड़ people were killed in this famine, right, in Bengal. ठीक है, तो बंगाल का 1/3 population मर गया because of this famine. Famine का मतलब क्या होता है? A mass number of people die because of hunger, because of disease. इसी को famine बोला जाता है. तो सोचो इतने सारे लोग मर गए, क्यों? हंगर की वजह से, right? So this was regarding the revenue for the company. Now coming to the next one, look at here, this is the market in मुर्शिदाबाद. मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? बंगाल में है. ये एक वीकली मार्केट है, राइट. यहाँ पर देखो peasants and artisans जो कि गांव में रहते हैं, they were coming regularly in these markets to sell their goods, ठीक है, and buy whatever they needed. That means these are the people who are coming weekly to purchase and sell the goods in this market. But because of the economic crisis, these markets were also affected, right. Now next is our because of this economic crisis what happened. ऑब्वियस सी बात है, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, लोग कल्टीवेशन करना बंद कर देंगे, तो कंपनी का रेवेन्यू घट जाएगा. यस और नो? आखिर लोग पैसे कहाँ से देंगे, टैक्स कहाँ से देंगे, अगर लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे? डू यू थिंक दैट पीपल विल एबल टू गिव मनी? नो, right or not? So the company now, they started thinking that how to improve land so that I can increase the land revenue, right. They wanted to improve the land. That means they wanted to give certain water facility. They wanted to give certain you can say इरिगेशन फैसिलिटी वो देना चाहते थे ताकि लैंड जो है वो इम्प्रूव हो जाए, राइट और नॉट. और कंपनी का जो टैक्सेस वो कलेक्ट कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाए, राइट. बट द क्वेश्चन इज हु विल इम्प्रूव द लैंड? कौन करेगा इम्प्रूव? ब्रिटिश? डू यू थिंक? नो, ब्रिटिश वाज अ ट्रेडर, राइट. अंग्रेजों का मानना था कि हम ट्रेडर हैं, वी कैन नॉट डू इट, राइट. तो कौन करेगा? फार्मर.
डू यू थिंक दैट फार्मर हैव मनी टू इम्प्रूव द लैंड? नो. सो ब्रिटिश भी तैयार नहीं थे लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि हम ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, हम ये सारा काम नहीं कर सकते. फार्मर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो तो टैक्स ही पे नहीं कर पा रहे थे, तो कहाँ से इम्प्रूव करते. तो इन दिस सिचुएशन जो वहां का उस समय का गवर्नर जनरल थे चार्ल्स कॉर्नवालिस, राइट, he introduced a system of permanent settlement in 1793. So what was permanent settlement? ठीक है, तो permanent settlement क्या था देखते हैं. It was the system in which the rajas and talukdars were recognized as zamindars. अंग्रेज क्या करते थे, वहां के जो राजा होते थे, ठीक है, लोकल रूलर, और जो तलुकदार्स होते थे, जो बड़े बड़े रिच पर्सन होते थे, उनको जमींदार बना दिया करते थे, राइट. और उनको बोलते थे यू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम पीजेंट, राइट. आप क्या करो, पीजेंट से रेंट कलेक्ट करो और मुझे रेवेन्यू दे दिया करो. दैट मीन्स दे वर टेलिंग, लुक एट हियर, दिस इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने बीच में एक मिडिल मैन को रख दिया. मिडिल मैन मतलब जमींदार, ठीक है, और नीचे कौन है, फार्मर, दोज हु आर पेइंग टैक्सेस. सो फार्मर टैक्स किसको देंगे, जमींदार को देंगे, राइट. जमींदार क्या करेगा, रेंट किसको देगा, ब्रिटिश को देगा. लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, वो क्या है, जमींदार जो देंगे रेवेन्यू टू द ब्रिटिश, इट वाज फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर. फिक्स्ड फॉर मतलब, टेक एन एग्जांपल, अंग्रेज ने जितना जमीन दिया उसको बोला कि आपको जो है 1 लाख रुपीस, आपको 1 लाख रुपीस क्या करना पड़ेगा पर ईयर का देना पड़ेगा. ये फिक्स है, ठीक है, हर एक साल कितना देना पड़ेगा जमींदार को, 1 लाख रुपीस टू द ब्रिटिश. नाउ जमींदार विल कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम फार्मर, ठीक है, एज पर देयर विश. जमींदार को जो मन मर्जी हो वो फार्मर से वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है. अगर जमींदार ने 1,10,000 कलेक्ट किया, राइट, तो 10,000 किसका हो गया, जमींदार का हो गया, 1 लाख रुपीस ब्रिटिश को दे दिया गया, राइट, ठीक है. इसके साथ साथ अंग्रेजों ने यह भी बोला कि दैट यू नीड टू इंप्रूव द लैंड ऑफ फार्मर्स, ठीक है, टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज, वट एवर यू नीड टू डू, just do it and improve the land. Now the responsibility to improve the land is of zamindar, right. So this was the permanent settlement. So look at here, this is Charles Cornwallis, ठीक है, okay. Remember the name who introduced the permanent settlement in India, name Charles Cornwallis, right, okay. Now the question is, do you think that everything was fine in permanent settlement? No, it was not fine. There was certain problem in permanent settlement. What was that? Look at. The first problem was Jamindar was not investing in the improvement of land. Do you think that Jamindar will invest money in improving land? No. Jamindar खुद ही परेशान थे. क्यों परेशान थे देखो. The revenue that has been fixed was so high that Jamindars found it difficult to pay. जो अंग्रेज, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश जो रेवेन्यू मांग रहे थे किससे, जमींदार से, ये काफी ज्यादा हाई था, राइट, ठीक है. तो जमींदार जो है रेवेन्यू पे करते करते ही परेशान हो जाता था. हाउ विल दे इंप्रूव द लैंड. अगर जमींदार दे भी देते थे, अगर जमींदार को प्रॉफिट भी होता था, तो फिर भी जमींदार इन्वेस्ट नहीं करते थे. क्यों बेकार में पैसा खर्च करना, राइट और नॉट. तो जमींदार वर नॉट इंप्रूविंग द लैंड. एट द सेम टाइम some of the zamindars were facing difficulties. Why? Because the revenue demanded by British was very high. Now what will happen if the zamindar will not able to pay the taxes or revenue? अगर जमींदार ब्रिटिश को रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उसका जमींदारी लॉस्ट हो जाता. दैट मीन्स जमींदारी उनसे छीन ली जाती थी. ब्रिटिश क्या करते थे, वापस ले लेते थे उनसे जमींदारी, राइट. नेक्स्ट, अब फार्मर्स भी काफी ज्यादा सफर कर रहे थे. व्हाई? देयर वर मेनी जमींदार्स हु वर चार्जिंग वेरी हाई टैक्स, ठीक है, कई सारे जमींदार थे जो कि फार्मर से काफी ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे. ये सिस्टम काफी ज्यादा ऑपरेसिव था फॉर द फार्मर्स.
अगर फार्मर्स टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उनको भी क्या कर दिया जाता था, लैंड से इविक्ट कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था, उनसे लैंड छीन लिया जाता था, राइट और नॉट? सो मेनी ऑफ द फार्मर्स स्टार्टेड पेइंग देयर टैक्सेस बाय टेकिंग लोन फ्रॉम मनी लेंडर. सोचो, somebody is paying taxes by taking loan from money lender. Is it feasible? No, right or not? So people were suffering, right? Then British also had a problem. अंग्रेज को भी एक प्रॉब्लम था. वो क्या, मैंने बताया जमींदार को क्या प्रॉब्लम था, राइट? फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम था. अब ब्रिटिश को भी एक प्रॉब्लम हो गया. क्या प्रॉब्लम हो गया? इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century the prices of crops were increased. ठीक है. द प्रोडक्शन वाज स्लोली एक्सपेंडेड. प्रोडक्शन भी एक्सपेंड हो गया, ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा, मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो गया. बट कंपनी को इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ. व्हाई? क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी परमानेंट सेटलमेंट बना के रखा था. परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है? फिक्स था, रेवेन्यू फिक्स था. दैट जमींदार जो ब्रिटिश को पे करेंगे वो फिक्स कर दिया था. ठीक है, फ्यूचर में भी इसको इंक्रीज नहीं कर सकते थे. तो अंग्रेजों को लगने लगा कि इन दिस सिचुएशन price is growing, right, as well as the production is also expanding. उसके बाद भी मेरा जो रेवेन्यू पहले का था वही का वही रह गया, बढ़ नहीं रहा है, राइट और नॉट? तो ब्रिटिश को भी इस बात से परेशानी होने लगी, राइट? सो in today's lecture whatever we discussed, think you need to remember this permanent settlement, right? Then I discussed about the needs of company, right? And then I talked about what was Diwan. That means who was Diwan and what was the work of it. Okay. It is enough for today. Thank you. Have a nice day.